students. Good morning. How are you all? I hope you all are fine and you all are doing good at your places. So, students, are you all ready to do today's task? Okay, fine. So, first of all, we start with the very first subject, which is English. So, this is your English book on screen. So, you have to bring out your English book. Okay, so we are reading the passage, and as per this passage, we are solving the question answers, right? So today you have to come on the same page 3939, right? In our previous session, we had completed some question answers, and there are little bit question answers which left. Fine. So here you have to come. See, these are the analyzed questions and the synthesized questions. So for that, you don't have to write it in the notebook because these questions are the general questions. So we do it orally. Fine. So, okay, students. So, the very first question we had completed till here, till 7, we had completed. Now, we start with the eighth question. So, you have to read it aloud. If Tommy was on his way to school, अगर टॉमी अपने स्कूल के रास्ते में है, वॉज ऑन हिज वे टू स्कूल, जब आप स्कूल आते हो, है ना, जब आप स्कूल कभी रीच नहीं हो तो यू आर ऑन हिज वे, है ना, यू आर ऑन योर वे, आप रास्ते में हो, ठीक है। अगर टॉमी भी रास्ते में है, वुड ही रीच ऑन टाइम, आपने पूरा पैसेज पढ़ा, क्या वो टाइम पर पहुंच पाएगा स्कूल? यस और नो, यू हैव टू गिव आंसर इन यस और नो। अगर यस है तो क्यों है, नो है तो क्यों है? ओके, हाउ मेनी ऑफ यू से यस? प्लीज रेज योर हैंड्स। अच्छा, कितने स्टूडेंट्स को लगता है कि आंसर यस है कि टॉमी स्कूल अपने टाइम पे पहुंच जाएगा, है ना? Who will say yes? Ma'am? No. Okay, why? Ma'am, because on his way to school he see many boxes. Yes. So Tommy was not reach स्कूल ऑन टाइम, वो स्कूल टाइम पर नहीं पहुंच पाएगा बिकॉज ही सॉ मेनी बॉक्सेस ऑन हिज वे टू स्कूल। सो हाउ यू हैव टू give your answer? If Tommy was on his way to school, you if you want to write it तो आप अपनी notebook में write down भी कर सकते हो, otherwise there is no requirement to write it in your notebook. Fine. So how you have to give answer? If Tommy was on his way to school, he couldn't reach on time. वो कभी भी टाइम पर नहीं रीच कर पाएगा। यहाँ पर वाई में ये क्यों नहीं रीच कर पाएगा उसका आंसर आपको नहीं देना है, ठीक है, बट आई विल टेल यू क्यों नहीं पहुंच पाएगा, बिकॉज ऑन हिज वे ही सॉ मेनी बॉक्सेस, है ना, उसने बहुत से बॉक्सेस देखे, टोटल 6 बॉक्सेस ही सॉ, तो that's why he couldn't reach on time. Okay, the next question is what happens when you reach your school late? क्या होगा जब आप अपने स्कूल में लेट जाओगे, क्या होगा? So you have to give me your answer, है ना? तो you have to give your answer. if you want to give your answer तो आप write down करके भी अपना आंसर दे सकते हो मैम को, otherwise you can also share the voice recording with me. So this question is as per your thinking, as per your understanding. I don't give you answer for this questions because this question is generally asking to you, आपसे पूछा गया, so you have to give your answer. Fine. So you have to give me your answer. If you want to write your answer तो आप एक आपकी जो नोटबुक है उसमें राइट डाउन करके भी मैम को पिक्चर क्लिक करके सेंड कर सकते हो, अदरवाइज यू कैन सेंड मी द वॉइस रिकॉर्डिंग. ओके, whatever is comfortable with you, you can give your answer in that way. Okay, come to the next question number 10. Tommy was scared of a cat. Tommy को किससे डर लगता था? Cat से डर लगता था. That's why he is hiding here and there. That's why he is searching for a box, suitable box के लिए वो देख रहा था कि वहाँ पर मैं छुप जाऊँ, वहाँ पर मैं हाइड कर लूँ, है ना, अपने आप को. क्यों? क्योंकि टॉमी को किससे डर लगता है? Scared. Scared means डरना किसी चीज से. किससे डर लगता है? Cat से. Okay, come to the next part. What scares you? अब क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, you means आप, आपको क्या scared करता है, तो ये क्वेश्चन का आंसर आपको मैम को देना है. That Tommy was scared of a cat. टॉमी को कैट से डर लगता है.
तो आपको किससे डर लगता है, ठीक है? तो this answer you have to give me, whether in written, whether in oral. It's as per your choice. Okay, students? So these are some questions which synthesize your analyzation, है ना? आपने क्या एनालाइज किया एज पर द पैसेज, आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग थी, तो उस पे बेस्ड ये कुछ क्वेश्चंस हैं, तो ये आपको राइट डाउन नहीं करने हैं, ये आपको ओरली मैम को आंसर करना है, ठीक है? चलो नेक्स्ट इज काउंट द नंबर ऑफ होल्स इन द बॉक्स मार्क्ड 7। तो जो 7th नंबर बॉक्स है ना, दिस वन, अब इसमें आपको कैलकुलेट करने कितने होल्स हैं, यू हैव टू कैलकुलेट द होल्स कि हाउ मेनी होल्स आर देयर इन दिस बॉक्स। so you have to count all the holes, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56. So as per my observation, there are 56 holes. So you have to calculate and count your कि कितने holes हैं. You have to calculate it, count it, and then you have to tell me how many holes are there. Okay. So first of all, you have to count it, and then you have to tell me how many holes are there in this box. Okay. Chalo, come to the next question. What is the name of an animal which rhymes with box? Okay, students, see the this one is a hint. जैसे box कौन से एनिमल का नेम है जो बॉक्स के साथ राइम करता है, ठीक है, जिसकी एंडिंग साउंड सेम है, राइमिंग वर्ड्स, जैसे बॉक्स तो फॉक्स है ना, दोनों में एंडिंग साउंड इज सेम, ऑक्स ऑक्स, तो ऐसा कौन सा एनिमल है? यू हैव टू टेल मी, हरी अप। सो इसका मैम अभी आपको आंसर दे देते हैं, ठीक है, इट्स ऑक्स, ओ एक्स, ऑक्स, है ना, ऑक्स होता है एक एनिमल। सो बॉक्स, फॉक्स, ऑक्स, तीनों के पीछे एंडिंग साउंड इज ऑक्स, right? Okay, these are some interesting questions, you like it? Okay, the next is, what is the plural for rat? Plural क्या होता है? Many, जैसे rat, if I'm saying rat, तो rat means एक rat की बात होती है, plural means many, जैसे for example यहाँ पे आपको एक hint दी हुई है, cat है, तो cat का plural क्या होगा? Cats, many things, cat, cat, so ऐसे ही rat का plural क्या होगा? Rats, है ना, एक अगर rat है तो रैट, अगर एक है तो रैट, अगर बहुत ज्यादा है प्लूरल अगर आपको बनाना है तो आप पीछे क्या लगा दोगे? एस, तो रैट्स, रैट्स इज द प्लूरल ऑफ रैट, आर ए टी एस। इफ यू वांट टू राइट इट ओवर हियर तो आप यहाँ पे भी राइट डाउन कर सकते हो, फाइन, but with the help of pencil, not pen or crayons. Okay, what is the singular for boxes? See, यहाँ पर प्लूरल दिया हुआ है ना, अब आपको सिंगुलर बनाना है, बॉक्सेस का सिंगुलर क्या आएगा? बॉक्स, है ना। A hint is also given to you here, foxes, fox, so boxes का सिंगुलर क्या होगा? बॉक्स, राइट, बॉक्स, बॉक्स, सिंगुलर, सिंगुलर से याद रखो सिंगल, सिंगल मीन्स वन, तो बॉक्स, अगर आई एम सेइंग बॉक्सेस, आई हैव मेनी बॉक्सेस, तो वो क्या हो जाएगा? प्लूरल, बहुत सारे, ठीक है। अगर एक की बात करनी है, सिंगुलर बात करनी है, तो बॉक्स, मैनी है तो बॉक्सेस, दैट इज प्लूरल। Okay, so students, today you have to complete this worksheet. These are the synthesized as well as the analyzed questions which you have to cover today, right? And there is no need to write it in your notebook. To maintain these questions in your notebook, there is no need to write it, right? Because these are the synthesized questions, these are as per your understanding. Okay, तो ये आप orally कर सकते हो अपनी मम्मा के साथ, and जो questions मैम ने आपको कहे हैं, लाइक द 9th क्वेश्चन, राइट, 9th क्वेश्चन एंड 10th क्वेश्चन एंड 11th क्वेश्चन, ओके, दीज 3 क्वेश्चंस के आंसर यू हैव टू गिव मी, इफ यू लाइक टू सेंड इट
to me recording, voice recording, so you can send it. If you want to capture a picture of these questions as well as the answers, so you can send it to me. Fine. But make sure in three questions ke answers you have to submit it on time. Fine, that's it for your English class today. You just have to revise twice. Okay, first day for reading. Next, you have to write the questions and answers in your notebook. And today, what we will do today, you have to practice these questions orally. Fine. So now we come towards your next subject, which is creative. For that, you have to bring out your A4 size sheet, right? Blank A4 size sheet. If you have the drawing file, so you can also take it along with you. Okay, students. So you have to take out your drawing files along with you, right? So here on top, you first of all you have to mention the date. So what is the date today? Today is 8th of February. So first of all, mention over here 8th of February and 2021. Fine. So what we had today? Today we draw a hut. Fine. First of all, we draw a hut today and then we will do painting in our hut. Fine. So, first of all, here you have to write the caption hut. Right. So, this is a hut which we will have to draw today. Okay. Fine. Chalo. Let's start. Take pencil in your hands. You all know how you have to draw a hut because it's very simple and many more time we had done it. First of all, you have to make a triangle like this, right? And then you have to make a little bit like this rectangle. Fine, it's done. Now here you have to make a straight line on top. Make a straight line just like this, similar to it. Fine. Now you have to make a slant line. Start from here and here. Then now make a straight line just like this. Straight line. And okay, one more thing which you can do is you have to make a big rectangle over here. ठीक है, आप यहाँ पे एक big rectangle भी draw कर सकते हो just like this. Okay, so see, your hut is ready now. Fine, students. See, it's ready now. So this is your hut and I want to make a window in my hut. See, this is a window in my hut. Now I will make a door also. Okay. Now if you want to make a pattern, so you can also make your hut beautiful by making different patterns. Right. I will use this pattern because this one is my favorite pattern. तो आप कोई भी pattern use कर सकते हो to make it beautiful, right? To decorate your hut. So this is my way to decorate it, right? Okay, students. So it's done now. Now, what you have to do next? Today, you only have to draw this, fine? And after that, you have to collect some material for tomorrow, okay? Because as I tell you that you have to do painting in it, right? So you must have the paintbrush. ओके यू मस्ट हैव पेंट ब्रश क्या होना चाहिए आपके पास पेंट ब्रश ओके आई विल राइट इट ओवर हियर ओके ताकि आपको याद रहे कि आपको क्या क्या मटेरियल रिक्वायर्ड है टू कवर इट ओके सो आई राइट ओवर हियर आपके पास सबसे पहले क्या होना चाहिए फॉर पेंटिंग यू मस्ट हैव अ पेंट ब्रश ठीक है पेंट ब्रश होना चाहिए आपके पास एंड द नेक्स्ट थिंग विच यू हैव इज द पेंट कलर ठीक है पोस्टर कलर आप बोल सकते हो और एक
ना ब्रांड है रंगोली, तो उसमें क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स होते हैं, तो आप वो भी आप परचेज कर सकते हो। तो यू मस्ट हैव द पोस्टर कलर। ठीक है मैम, मैं पूरी एक पर्टिकुलर कलर आपको सजेस्ट नहीं कर रही हूँ। आई वांट कि आप वो रंगोली के कलर्स आते हैं, उसमें डिफरेंट डिफरेंट कलर्स होते हैं, सेक्शंस बने होते हैं, तो उसमें डिफरेंट डिफरेंट कलर होते हैं, तो वो काफ़ी इजी रहेगा आपके लिए। पोस्टर कलर आप बाय कर सकते हो। ठीक है, सो टू थिंग्स you must have a paintbrush and the poster color. Okay, so आज tomorrow what we will do, tomorrow we will do painting in our hut. ठीक है, the two things which is required is paint brush and poster color. ठीक है, पोस्टर कलर मैम ने आपको क्यों सजेस्ट किया रंगोली पोस्टर कलर, क्योंकि उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट कलर्स होते हैं, तो ऐसा नहीं होगा कि आप एक ही कलर से अपनी हट को कलर करो, है ना, एक ही पर्टिकुलर कलर से। तो अगर आपके पास डिफरेंट डिफरेंट कलर्स होंगे तो आप डिफरेंट डिफरेंट कलर्स कर पाओगे, यहाँ पर डिफरेंट कलर, यहाँ पर डिफरेंट कलर। ठीक है, तो वो ब्यूटीफुल भी लगेगा और वन टाइम आप उसको परचेज कर लो। ओके, दैट्स इट, व्हाट यू वांट इज पेंट ब्रश और पोस्टर कलर विच इज रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट दिस वर्कशीट। ओके, तो आज आप उसको कलेक्ट करो, मटेरियल भी रिक्वायर्ड है, इसको ड्रॉ करो हट को, एंड टुमारो वी विल डू पेंटिंग इन इट। फाइन, so that's all for today students. Fine. Okay. Now we will come back to our next subject, which is maths. So this is your mathematics book. You have to take out your maths book, and then we will just start our today concept. So yes, I will introduce you the concept of division, and I know कि students take so much interest in the concept of division. आप बहुत अच्छे से अपने division concept को learn कर रहे हो, और even you also perform the activity at your home with the help of PASA. So I am very happy कि आप डिफरेंट डिफरेंट टीचिंग एड्स की हेल्प से आप एक्टिविटीज़ के थ्रू अपना कंसेप्ट लर्न करो, एंड दैट इज़ वेरी गुड, बिकॉज आई वांट कि आप कोई भी कंसेप्ट लर्न करो तो उसमें इंटरेस्ट आपका पूरा होना चाहिए। ठीक है, तो आई एम सो हैप्पी, वेरी गुड, मन से है, वेल डन। ओके, सो एंड आई ऑल्सो अप्रिशिएट कि और सारे स्टूडेंट्स भी विद एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे अगर अपना कोई भी कंसेप्ट, तो आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगेगा। ठीक है, चलो, नाउ टुडे वी विल डू page number 50. Fine, so you have to open your page number 5050. Yes, we are doing the same concept, division ही करेंगे, but with some new method. Okay, new method के थ्रू करेंगे। इवन मैम ने एक्टिविटी के थ्रू आप ये मेथड पहले भी इंट्रोड्यूस करवा दिया है, ग्रुपिंग मेथड हम इसको बोलते हैं। ठीक है, जहाँ पर आप रियल ऑब्जेक्ट्स के थ्रू ग्रुपिंग करते हो। ग्रुपिंग कैसे, जैसे कोई टू स्टूडेंट्स हैं, आपने उनको इक्वली कोई चीज डिस्ट्रीब्यूट कर, तो दैट फॉर्म ऑफ मेथड और दैट टेक्निक इज नोन एज ग्रुपिंग मेथड। ठीक है, तो ये मैंने आपको पहले भी करवाया, जहाँ पर मैम ने आपको कहा है कि यू हैव टू टेक 10 वेजिटेबल्स एंड यू हैव टू टेक 2 बाउल्स और 2 बास्केट, जहाँ पे आपने इक्वली उसको डिवाइड करना है। देन यू हैव टू काउंट कि आपने कितने कितने दोनों बास्केट्स में डिस्ट्रीब्यूट करें। ठीक है, तो उस मेथड को हम क्या बोलते हैं, ग्रुपिंग मेथड। ओके, सो फ्रॉम दिस वर्कशीट वी कम टू नो कि कैसे हमने इस ग्रुपिंग मेथड को विद एक्टिविटी परफॉर्म करना है। ठीक है, तो लर्निंग रिसोर्सेज विच यू रिक्वायर्ड फॉर दिस इज मार्बल्स। आप मार्बल्स किसी भी स्टेशनरी शॉप से इजीली मार्बल्स अवेलेबल होते हैं। ठीक है, इफ़ यू डोंट वांट टू गो आउटसाइड, तो आप घर में बीन्स, है ना, मोस्ट जितनी भी एक्टिविटीज़ हमने परफॉर्म करी है, जितने भी कंसेप्ट मैंने आपको टॉट किया, तो हम मोस्टली हमने बीन्स की हेल्प से ही करें। तो आई वुड रिकमेंड कि अभी बीन्स आप मत यूज़ करो, आप कोई और ग्रेन यूज़ कर सकते हो, कोई और पल्सेस यूज़ कर सकते हो घर में, चिक पीस के थ्रू आप करवा दो, है ना, बिकॉज आई वांट कि मेरे स्टूडेंट जो है किसी एक न्यू टीचिंग एड के साथ उसको लर्न करें। ठीक है, तो इंस्टेड ऑफ बीन्स यू विल टेक चिक पीस। फाइन, सो इट्स माई पर्सनल रिकमेंडेशन कि आप बीन्स मत यूज़ करो, बिकॉज बार बार अगर हम बीन्स के साथ ही एक्टिविटी करेंगे तो बच्चों के लिए वो थोड़ी इंटरेस्टिंग कम हो जाएगी। तो इफ़ यू गो विद दिस एक्टिविटी, तो आप चिक पीस के थ्रू यूज करो। ठीक है, तो दैट व्हाट रिक्वायर्ड फर्स्ट,
ओके, द नेक्स्ट थिंग इज बाउल। तो कोई भी आप 2 बाउल्स ले लो, ठीक है। नंबर कार्ड्स, फ्लैश कार्ड ऑफ डिवीजन, सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स। व्हेनेवर यू इंट्रोड्यूस एन एक्टिविटी, अगर आप कोई भी एक्टिविटी इंट्रोड्यूस करा रहे हो, जैसे मल्टीप्लिकेशन की भी हमने एक्टिविटी इंट्रोड्यूस करी किड्स को, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन और एडिशन, तो सबसे पहले आप फ्लैश कार्ड की हेल्प से वो सिंबल डिनोट जरूर करिए कि आज हम कौन सा कंसेप्ट करेंगे। वी विल डू द कंसेप्ट ऑफ डिवीजन, ठीक है। डिवीजन का सिंबल क्या होता है, ये डिवीजन को हम कैसे जानते हैं, विद दिस सिंबल। ये जो सिंबल होता है ये डिवीजन का सिंबल होता है, ताकि बच्चों को अंडरस्टैंडिंग स्टार्टिंग से ही क्रिएट हो, ठीक है। सो दिस इज द साइन और कैन से द सिंबल ऑफ डिवीजन, ओके। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि बच्चे डिस्टिंग्विश कर पाए कि ये जो सिंबल है ये डिवीजन का होता है, दिस इज द सिंबल फॉर मल्टीप्लिकेशन एंड दिस इज फॉर एडिशन एंड दिस इज फॉर सब्ट्रैक्शन। फाइन, चलो, ओके, वी विल रीड दिस एंड देन आई विल टेल यू कि आपने कैसे एक्टिविटी परफॉर्म करनी है। चलो, कीप 10 मार्बल्स इन अ बाउल, इंस्टेड ऑफ मार्बल्स यू कैन ऑल्सो टेक चिक पीस। अगर बीन्स की हेल्प से करवाना है तो आप बीन्स भी ले सकते हो, ठीक है। तो 10 मार्बल्स, बीन्स या फिर चिक पीस आपने एक बाउल में लेने हैं, ओके। नाउ कॉल 5 चिल्ड्रन टू द फ्रंट, गिव 1 मार्बल टू ईच चाइल्ड। तो आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले 10 मार्बल्स या फिर कुछ भी आपने एक बाउल में लिए, तो आपने 5 चिल्ड्रंस को अपने पास बुलाया, एक एक मार्बल आपने सबको 5 चिल्ड्रन में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। फिर से आपने रिपीट किया प्रोसेस अंटिल ऑल द मार्बल गेट डिस्ट्रीब्यूटेड। आपके पास एक बाउल है, यू हैव 1 बाउल, इस बाउल में कितने पड़े हैं, 10 चिकपीस है, ठीक है। और आपके पास कितने आपके सामने चिल्ड्रंस है, 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। ये जो स्टैंडिंग लाइन्स है दैट मीन्स दीज आर द चिल्ड्रंस इन फ्रंट ऑफ यू। तो आपने एक एक मार्बल सबको डिस्ट्रीब्यूट किया, ठीक है। 5 मार्बल्स आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, देन अगेन यू विल रिपीट द सेम प्रोसेस, जब तक आपके पास यहाँ पर जितने 10 मार्बल्स है वो खत्म नहीं हो जाते, तब तक आप डिस्ट्रीब्यूट करते रहोगे, ठीक है। फिर से आपने 1 1 2 3 4 5 आपने डिस्ट्रीब्यूट करें, टोटल आपने 10 डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। अब आपके पास इस बाउल में एक भी मार्बल नहीं है। नाउ आस्क ईच चाइल्ड टू काउंट द मार्बल ही और शी रिसीव। अब आपने जितने भी यहाँ पर आपके पास जितने भी बच्चे खड़े हैं, आपने सबसे पूछना है कि सबके पास कितने कितने मार्बल्स है। दे विल काउंट दैट, मैम आई विल गेट 2, सेकेंड ऑल्सो से मेरे पास भी 2 है, आई ऑल्सो हैव 2, मैम आई ऑल्सो हैव 2। सो यू हैव टू से दैट yes, when I have 10 marbles or when I have 10 things, if I'll distribute in 5, अगर मैं 10 चीज़ों को 5 स्टूडेंट्स में इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर रही हूँ, तो सबके पास कितने कितने आएंगे, 2 ईच, ठीक है। तो 10 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 2। अगर मैं 10 को 5 से डिवाइड करती हूँ तो वो किसके इक्वल है, 2 के इक्वल है। दैट मीन्स सबको 2 थिंग्स डिस्ट्रीब्यूट होंगी, ओके। नाउ देन ऑल्सो दिस मेथड इज नोन एज ग्रुपिंग मेथड। इस मेथड को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, वी विल से इट एज ग्रुपिंग मेथड, ओके। नाउ इंट्रोड्यूस द सिंबल of division with a flash card। तो if you don't have that flash card, तो आप घर पे भी flash card maintain कर सकते हैं by taking a hard sheet, है ना, hard sheet ले लो या कार्डबोर्ड ले लो, उसके ऊपर आप उसको रैप करके A4 साइज शीट से उसके ऊपर आप ये सिंबल ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। सो यू हैव टू इंट्रोड्यूस द सिंबल ऑफ डिवीजन विद द फ्लैश कार्ड, propose an equation and show it with the number cards। और यही इक्वेशन आप शो करो कि 10 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 2 विद इक्वेशंस। नाउ अब हमने क्या करना है, नाउ यू हैव टू टेक 2 बाउल्स। आपने 2 बाउल्स लिए और आपके पास कितने 10 बीन्स हैं, ठीक है, एंड डिवाइड द बीन्स इक्वली इन 2 बाउल्स। अब आपने क्या करना है, आपके पास 10 बीन्स हैं, ठीक है, तो आपने आपके पास 2 बाउल्स हैं। नाउ यू हैव अगेन यू हैव 10 बीन्स, आपके पास 10 बीन्स हैं और आपने 10 बीन्स को किस में डिवाइड करना है, 2 बाउल्स में डिवाइड करना है, ठीक है।
तो आप कैसे डिवाइड करोगे? यू हैव टू आस्क द चाइल्ड टू काउंट द नंबर ऑफ बीन्स इन ईच बाउल। जैसे आई हैव 10 बीन्स, तो मैंने 1 बीन इसमें डाला, 1 बीन इसमें डाला, 2 हो गए। देन अगेन आई एड 1 बीन ओवर हियर, देन आई एड 1 बीन ओवर हियर, 4। देन आई एड 1 more bean here, 1 more bean here, it's 6. Then I add one more over here, 4, 4, 8. Then I add one here and I add one here. So अब मेरे पास एक भी बीन नहीं है, बिकॉज मेरे पास 10 बीन्स थे ना। इनिशियली आई हैव 10 बीन्स, मैंने सारे बीन्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए 1 1 करके दोनों बाउल्स में। अब हाउ मच ईच बीन कैरी इन फर्स्ट बाउल? हर एक इस बाउल में कितने बीन कैरी है? 1 2 3 4 5। यू हैव टू काउंट इट। हाउ मेनी बीन्स आर देयर इन फर्स्ट बाउल? 5 बीन्स है ना। और इफ यू काउंट द सेकेंड बाउल, उसमें कितने हैं? 1 2 3 4 5। सो दोनों बाउल में 5 5 बीन्स है। दैट मीन्स इफ यू डिवाइड 10 among two students और two बाउल्स में अगर आप उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हो, तो हाउ मच ईच गेट 5। ठीक है, तो दैट इज द ग्रुपिंग मेथड। यू कैन डू इट विद द रियल ऑब्जेक्ट एज वेल। फाइन, दिस इज वेरी सिंपल वे टू एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ डिविजन इन यंग माइंड्स। ओके, और अगर वो रियल ऑब्जेक्ट्स के थ्रू करेंगे, सो वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा बाय सॉल्विंग इन थ्रू डिवीजन चार्ट और डिवीजन बोर्ड। ठीक है, सो दैट्स इट। आई वांट कि आप थ्रू एक्टिविटी एक्सप्लेन करो। ठीक है, बिकॉज इट्स हार्डली गेट कि आपको मटेरियल रिक्वायर्ड बहुत कम है। बीन्स और पल्सेस ही होती है जो आप उसके थ्रू आप स्टूडेंट्स को करवाओगे, तो दे विल learn it in a better way, and that all what I want कि students क्रैमिंग ना करें, वो अंडरस्टैंड, उनकी अंडरस्टैंडिंग पावर बिल्डअप हो। दैट्स ऑल आई वांट। फाइन, चलो लेट्स कम टू द मेन वर्कशीट। यू हैव टू टर्न योर पेज अराउंड। Come on the next worksheet, that is 5151. Okay, so today what we will do, we do the same concept of division but with the help of grouping method. Okay, so on top you have to mention the date for today. Today is 8th of February, so here you have to mention the date first. Today is 8th, so on top you have to write the date. The month is same, it's February, and the year is 2021. So here you have to write the year 2021. And today is a new week, starting of the week, so the day is Monday, so you have to circle the Monday. And this one you have to do by own. Go outside, check the weather today, and circle the clip art. Fine. Chalo, let's start. Okay, students, if you see that there is clip arts given to you, है ना, आपको graphics दिए गए हैं कुछ, so you have to look at here in the picture, and then you have to solve the equations. Fine, but before solving it, we have to come down and we have to see what is given information for us. Okay, so what is written over here? Count and write the number each group got. So आपको क्या करना है? आपको काउंट करना है और आपको राइट डाउन करना है कितने कितने नंबर्स हर एक ग्रुप के पास हैं, कितने नंबर ऑफ थिंग्स हर एक ग्रुप के पास है। ओके, क्रिएट सिमिलर कॉन्वर्सेशन विद डिफरेंट नंबर्स। आप डिफरेंट नंबर्स के साथ भी इसको कर सकते हो एट योर होम। फाइन, टॉनी सेड आई हैव 18 आइसक्रीम कोन्स। सो स्टूडेंट्स, अभी फिर से आइसक्रीम की बात हो गई है ना, एंड मोस्ट ऑफ माई स्टूडेंट लाइक आइसक्रीम। सो ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल वी सॉल्व द इक्वेशंस, फर्स्ट ऑफ ऑल वी डू द मैथ वर्क, एंड देन यू आस्क फॉर आइसक्रीम। ठीक है, तो अभी आइसक्रीम के बारे में किसी ने भी नहीं सोचा है, पहले फटाफट से हम वर्क करेंगे। देन यू हैव टू थिंक अबाउट आइसक्रीम एंड आइसक्रीम कोन्स। ओके, सो आई हैव 18 आइसक्रीम कोन्स। टॉनी क्या कहता है? टॉनी कहते हैं कि मेरे पास 18 आइसक्रीम कोन्स है ना। सो टीना सेड इफ यू शेयर इट इक्वली विथ 2 फ्रेंड्स, अगर तुम्हारे पास 18 है तो तुम्हें 2 फ्रेंड्स में इक्वली शेयर करना है, तो हाउ मेनी विल ईच गेट? अगर आप 18 कोन्स को अपने 2 फ्रेंड्स में डिवाइड करोगे तो सबके पास कितने कितने आएंगे? सो टोनी सेड यू नो इट विल बी 9। वो कितने हो जाएंगे? 9। तो सबको कितने कितने मिलेंगे? उसके 2 फ्रेंड्स को 9 कोन्स। So my all students, you would like to eat 9 cones?
नो मैम, आई ओनली वांट वन। ओके, ठीक है, फाइन, चलो फटाफट से पहले भी हम वर्क करेंगे, देन यू विल गेट। ओके, कम अपवर्ड। फाइन, सो यहाँ पे तो बहुत सारी आइसक्रीम्स है, सी देयर आर आइसक्रीम कप्स, है ना, डिफरेंट डिफरेंट आइसक्रीम्स है, देखो। एंड yesterday also we made ice cream, right? Okay, fine, चलो let's start. ओके स्टूडेंट्स, सो इफ यू सी ओवर हियर, देखो यहाँ पे ग्रुप है ना, आप सर्कल्स देखो, ये एक सर्कल है, ये एक सर्कल है, और ये थर्ड सर्कल है, सो देर आर थ्री ग्रुप्स, है ना। तो थ्री ग्रुप्स ग्रुप्स को आप लेके चलो कि थ्री फ्रेंड्स हैं, राइट। सो हर एक ग्रुप में कितनी कितनी आइसक्रीम्स है, अभी इस ग्रुप में देखो यहाँ पे भी टू है, देर ऑल्सो टू, देर ऑल्सो टू, है ना। सो हर एक ग्रुप में टू टू आइसक्रीम है, सो सी टोटल कितनी आइसक्रीम्स है, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, टोटल देर आर सिक्स आइसक्रीम, है ना, सिक्स आइसक्रीम। अगर सिक्स आइसक्रीम्स को आप थ्री थ्री फ्रेंड्स में, है ना, देर आर थ्री ग्रुप्स ना, मतलब थ्री फ्रेंड्स है, अगर आप सिक्स आइसक्रीम को थ्री फ्रेंड्स में डिवाइड करोगे तो हाउ मच ईच गेट, सबको कितनी कितनी मिलेंगी, टू टू आइसक्रीम्स मिलेंगी सबको, सो द आंसर इज टू, ठीक है, तो आपको ऐसे करना है ये, सो द आंसर इज 2, so here you have to write it. Okay, the next is C, यहाँ पर कितनी आइसक्रीम्स है, टोटल 9 आइसक्रीम है, टोटल कितनी, अगर आप सारी आइसक्रीम काउंट करोगे तो 9 है। अगर आप अपनी 9 आइसक्रीम्स को अपने थ्री फ्रेंड्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे तो सबको कितनी कितनी मिलेगी, हर एक ग्रुप में देखो कितनी कितनी आइसक्रीम्स है, वन टू थ्री, यहाँ पे भी थ्री आइसक्रीम्स, यहाँ पे भी, तो सबको कितनी कितनी आइसक्रीम मिलेंगी, थ्री थ्री आइसक्रीम मिलेगी, ठीक है। चलो नाउ यू हैव टू कम सी, दिस वन इज द स्टिक आइसक्रीम, है ना, आइसक्रीम स्टिक है ये। चलो अभी यहाँ पर आपके पास टोटल कितनी आइसक्रीम्स हैं, यू हैव 10 आइसक्रीम्स, ओके। अगर आपको काउंट करना है तो आप काउंट भी कर सकते हो, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन, तो यू हैव टोटल 10 आइसक्रीम। और आपके पास ग्रुप कितने हैं, टू टू के, टू फ्रेंड्स हैं आपके, तो आपको 10 आइसक्रीम्स को अपने टू फ्रेंड्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो हाउ मच ईच गेट, आप देखो एक ग्रुप में कितनी आइसक्रीम है, वन टू थ्री फोर फाइव, तो हर एक फ्रेंड को आपके फाइव फाइव आइसक्रीम डिस्ट्रीब्यूट होंगे, ओके। चलो the next is, see, this method is very easy students, grouping method is very easy, okay। चलो next is, now see this equation, first of all you have to read it, there are 12 आइसक्रीम्स, ठीक है, 12 आइसक्रीम्स है आपके पास, आपने 12 आइसक्रीम्स को फोर फ्रेंड्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है, कितनी आइसक्रीम्स को, 12 आइसक्रीम्स को फोर फ्रेंड्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब आपको क्या पता होना चाहिए कि हाउ मच ईच फ्रेंड, आपके हर एक फ्रेंड को कितनी कितनी आइसक्रीम डिस्ट्रीब्यूट होगी, ठीक है। तो देर आर फोर ग्रुप्स, वन ग्रुप टू ग्रुप थ्री फोर, ठीक है, तो कितने कितनी आइसक्रीम्स मिली है हर एक ग्रुप में, इट्स वन टू थ्री, यहाँ पे भी वन टू थ्री, यहाँ पे भी वन टू थ्री, वन टू थ्री, तो हर एक ग्रुप में each group get 3 ice cream. So that means if you divide 12 with 4, so each get 3 ice creams. Fine. So next, come to the next equation. Yes. So this one is the equation. So how much cones you have? You have 18 cones. Wow. You have 18 cones, है ना? और आपके two friends हैं, have 18 cones and you have two friends, तो आप कितने कितने आइसक्रीम डिस्ट्रीब्यूट करोगे अपने हर एक फ्रेंड को, काउंटेड वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन, सो ईच फ्रेंड गेट नाइन आइसक्रीम, हर को कितनी आइसक्रीम्स मिलेगी स्टूडेंट्स, ईच वन गेट नाइन आइसक्रीम्स, राइट। Okay, so 18 divided by 2 is equal to 9. 18 divided by, अगर आप 18 को, if you have 18 things, और अगर उन 18 things को आपको 2 में डिवाइड करना है, 2 फ्रेंड्स को आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है इक्वली, तो हाउ मच यू गेट 9 9 each, ओके। चलो नेक्स्ट इज, अब सी रीड दिस इक्वेशन, 8 डिवाइडेड बाय 2, आपके पास 8 आइसक्रीम्स है, हाउ मच यू हैव 8 आइसक्रीम्स, और आपने 8 आइसक्रीम को टू फ्रेंड्स में, सी देयर आर टू सर्कल्स ना,
आपने 8 आइसक्रीम्स को 2 फ्रेंड्स में डिवाइड कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट करा इक्वली। तो दोनों के पास कितनी कितनी आई? 1 2 3 4, इसके पास भी 4 आई और इसके पास भी 1 2 3 4, इसके पास भी 4 आई। तो अगर आप 8 को 2 में डिवाइड करोगे, 8 ऑब्जेक्ट्स को 2 फ्रेंड्स में डिवाइड करोगे, तो दोनों के पास कितने कितने आएंगे? 4 4 ईच। Okay, each get 4 4 ice cream. So this is your today concept of division with the help of grouping method. Okay, so today you have to do it at your home and then you have to submit your work on time. Now it's time for the daily diary. So you have to bring out your daily diary notebook where you have to keep record of your daily diary, students. Okay, so on top, first of all, we will mention the date first. So it's 8th of February and the year is 2021. सबसे पहले you have to write the date first and then here you have to write the homework for your subject 1. So here you have to write do, or you can say complete page number 3939 of unit A. Okay, so you can write your English homework first. Now the next is your creative work, है ना? Your craft work, or you can say your creative work. So here you, what you have to do today, you have to draw a hut. Okay, so today you have to draw a hut and tomorrow you also have to collect the material which is required for painting. ठीक है, तो आपको पेंट ब्रश होना चाहिए and you must have the poster color with you. And tomorrow what we will do, we do painting in your hut. चलो, next is your third subject, which is maths. So here you have to write the subject name first. It's maths, and here you have to write the homework for your maths. So today you have to do page number 50 and 50 पे you have to conduct an activity first. ठीक है, जो मैम ने आपको पहले भी इंट्रोड्यूस करवाई एक्टिविटी, ग्रुपिंग एक्टिविटी. First of all you have to conduct the activity first and then you have to shift on the worksheet related to that. Okay, do page number 50 and 51 of unit, it's from unit B. Okay, so that's your today homework. You have to write down first and then you have to submit your daily diary. Okay, students, and one more thing which I say in last, you have to subscribe the channel first because here you can get all the updates. Okay, that's it. Have a good day, and wherever you feel any doubt, any queries, you can contact me anytime. Have a good day. Bye bye. God bless you.